Hello everyone, welcome to Sames English. Today we are going to cover up the topic tense. That is the basic topic. Okay, starting from the school dates till we reach wherever we may reach. Okay, so we have to know tense. What is tense? Okay, basically tense tells us about the time of an action. मीन्स एक काम किस टाइम पे हो रहा है गोटे काम को समय होची ओके सेकंड डेफिनेशन वी कैन से इट आल्सो टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ एन एक्शन मीन्स व्हाट द स्टेज whether the action is complete or incomplete okay that is the state of an action एक काम खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है कि चल रहा है सपोज आई एम गिविंग वन एग्जांपल I am writing an essay. Okay, means वो काम अभी चल रहा है वो खत्म नहीं हुआ है Okay, so it tells us about the state of an action whether the action is complete or incomplete. So इससे हमें पता चलेगा कि एक काम खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है Then another definition we can say it is a form of the verb that allows us to express time. Okay, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब का एक फॉर्म है ओके सो किस टाइम पे कौन सा काम हो रहा है उसे हम एक्सप्रेस करेंगे ओके उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या टेंस सो इफ यू कम टू द टाइप्स जनरली टेंस इज ऑफ थ्री टाइप्स जनरली पीपल से दैट प्रेजेंट टेंस past tense and future tense okay but there is confusion nowadays people also say that tense is of two types and future is the time two types means present tense past tense but future is the time so a question may arise in your mind that why future is the time not tense okay both are correct okay we cannot say that this is correct or this is incorrect both are correct so as our second definition explains okay that it tells about the state of an action and also it is a form of the verb that allows us to express time okay it is a form of the verb so verb has all of you know verb has generally three forms v1 v2 and v3 okay v1 is generally called present form of the verb v2 past form and v3 is the past participle form but we don't use any future form of the verb so that we can say that future is the time here also I have mentioned as there is no future form of the verb so we can call it as future time now we'll go through present tense. Present tense is of four types. Simple present, present progressive or present continuous, present perfect and present perfect progressive or present perfect continuous. Now first we'll cover up simple present. So what is simple present? So in these cases we use simple present. Which are the cases? First is universal truth, then habitual action, fixed program with timetable, to show future time using when, scientific truth and newspaper headline. One by one I will explain each and everything. Clear? So first let's take one example. He goes to school. वो स्कूल जाता है मीन्स क्या हो गया इट्स ए डे टू डे एक्टिविटी रेगुलर एक्टिविटी ओके यहाँ पे मैं लिखा हुआ ना हैबिचुअल एक्शन इट मीन्स डे टू डे एक्टिविटी whatever we do in our life in regular basis so he goes to school वो स्कूल जाता है मतलब हर रोज वो स्कूल जाता है ओके सो यहाँ पे according to by looking this sentence okay we can draw a formula what is that subject plus v1 plus a sub es plus object okay here the subject is here he is the subject वो करता है जिसे बोलते हैं हम लोग वो काम कर रहा है he is the subject he
he goes to school. Goes here V1 plus S और ES. V1 form is here go. Then plus S और ES यूज हुआ है यहाँ पे GOES goes. Okay, so S or ES will be used according to the subject. If the subject is the third person singular, then only we will use S or ES. Okay, if it is third person plural, only V1 will be used. S or ES will not be used. समझ में आया? Okay, so इसीलिए मैं यहाँ पे एक स्टार मार्क बनाया हूँ. I have given a star mark here. Then comes object. देखो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं? Subject हो गया आपका he, verb हो गया go. Okay, आज he is the third person singular. So यहाँ पे क्या हो रहा है? ES हम लोग यूज किए हैं. Then come to he goes to school. Okay, so it satisfies the sentence. So this is the skeletal formula of present simple. Now come to universal truth. Universal truth means everywhere the same thing is true. This will not change over place. The earth moves around the sun. Earth always moves around the sun. It is true everywhere. Then come to sun rises in the east. Okay, sun east में rise करता है. Okay, same thing. We all of us know. Okay. Then come to habitual action. I wake up at 6 a.m. means हर रोज मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ. Habitual action means whatever we do in our day-to-day basis. Okay, habitual action or day-to-day action we can see. He goes to school at 9:30 a.m. मतलब हर रोज वो स्कूल सुबह 9:30 बजे जाता है. Then come to fixed program with timetable. Okay, टाइम टेबल के साथ एक प्रोग्राम फिक्स हो चुका है, वहां पे हम लोग यूज करेंगे क्या? प्रेजेंट सिंपल. द फ्लाइट टेक्स अप एट 5 p.m. फ्लाइट का जो टेकअप का टाइम है वो हर रोज 5 बजे ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता. ओके, वो फिक्स है, वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते. ओके, इफ देयर इज एनी hazardous situation then it may change, but otherwise it is always same. Then come to our school reopens on Monday. मतलब बहुत पहले से वो टाइम टेबल फिक्स हो चुका है. अब हमारा स्कूल मंडे को रीओपन होगा. छुट्टी हुआ था, मंडे को रीओपन हो रहा है. ओके, our school reopens on Monday. Then come to scientific truth. Oil floats on water. Okay, if you pour some oil on some water, then the water will float. Okay, so it is true, scientific truth. Okay, then hydrogen and oxygen give rise to water. All of you know H2O. Okay, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके ही पानी बनाते हैं ना. ओके, इसलिए ये भी एक ट्रूथ है. तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव राइज टू, बिकॉज यहाँ पे प्लूरल हो गया तो हमें गिव्स नहीं की हम लोग. ठीक है, यहाँ पे कम टू न्यूज़पेपर हेडलाइन. न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन आता है, ओके, जनरली वो किसमें आता है? प्रेजेंट सिंपल में. कैसे? विलेजर्स हेल्प द आर्मी इन रेस्क्यू ऑपरेशन. मतलब कहीं पे कुछ बाढ़ आया है क्या, कोई साइक्लोन हुआ है क्या, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पे विलेजर्स क्या हेल्प किए किसको? रेस्क्यू टीम को, और आर्मी को हेल्प किए रेस्क्यू ऑपरेशन. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विलेजर्स हेल्प आर्मी इन रेस्क्यू ऑपरेशन, वो लिखा जाता है जनरली. ओके, देन कम टू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस. दिस नेम इटसेल्फ सजेस्ट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस. व्हाट डज इट मीन? प्रोग्रेसिव मतलब एक काम प्रोग्रेस पे है, मतलब ऑलरेडी शुरू हो चुका है, अभी वो काम चल रहा है बट खत्म नहीं हुआ है, और कब खत्म होगा हमें पता नहीं है. ठीक है, और कंटिन्यूअस, काम कंटिन्यूएशन में है, काम कंटिन्यू कर रहा है. गोटे काम ऑलरेडी आरंभ है कि ଏବେ ବି
चली केतेबेले सरियो हमको जणा नाही देखो आई एम ईटिंग राइस वी कैन से दैट आई एम ईटिंग राइस मीन्स मैं चावल खा रहा हूं खाने का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है अभी इस टाइम पे कंटिन्यू हो रहा है और आगे भी कुछ देर तक चलेगा ठीक है आई एम ईटिंग राइस सो आफ्टर लुकिंग एट दिस सेंटेंस वी कैन से दैट दिस इज द फॉर्मूला ओके क्या हुआ फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस ईजामार प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट ओके तो पता है इट इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट हुआ ईजामार यूज हुआ ईजामार के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का अंदर एग्जांपल ही इज ड्राइविंग ए कार वो एक कार चला रहा है मतलब अभी वो एक कार चला रहा है ओके वो कार चलाने का जो काम है वो अभी चल रहा है खत्म नहीं हुआ है ओके सो इसका यूज कहाँ पे होता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन व्हिच इज इन प्रोग्रेस मतलब अभी इसी वक्त ओके व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग द फैक्ट व्हेन वी आर सेइंग समथिंग एट द सेम टाइम दैट एक्शन इज गोइंग ऑन ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆକ୍ସନଟା ଚାଲିଛି ओके सपोज ଗୋଟେ एक्शन ଚାଲିଛି सपोज एक एक्शन चल रहा है हम लोग उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं ओके सो क्या हुआ आई एम ईटिंग राइस सेम एग्जांपल अभी मैं खाना खा रहा हूँ ओके उसको मैं बोल रहा हूँ ओके अभी वो वर्क चल रहा है दिस वर्क इज कंटिन्यूइंग राइट नाउ देन कम टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे एक काम प्रेजेंट में चल रहा है अभी वो काम शुरू होके चल रहा है उसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं तब हम लोग यूज कर रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बट हर वक्त ऐसा नहीं है ओके टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस एक काम ऑलरेडी चल रहा है बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ऐसा नहीं कि स्पीकिंग के टाइम पे ही होगा तभी हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस ओके अगर एक काम बहुत दिन से चलता है माने शुरू हो चुका है अभी भी चल रहा है पर इसी मोमेंट में नहीं चल रहा है फॉर एग्जांपल आई एम लर्निंग कार ड्राइविंग मतलब मैं कार चलाना सीख रहा हूँ मैं कार चलेगा सीखुची ओके बट कब सीख रहा हूँ मैं तो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है बट इसका मतलब क्या हुआ ये काम कुछ देर पहले शुरू हो चुका है मतलब कुछ दिन पहले शुरू हो चुका है जो कार चलाने का काम है अभी भी चल रहा है मतलब प्रोग्रेस में है मैं पूरी तरह से कार चलाना सीख नहीं चुका हूँ ठीक है पूरा भल भाव कार चलेगा ମୁଁ ଶିଖି ସାରି ନାହିଁ ओके कामटा एबे भी चली बहुत दिन आगे आरंभ होइतिला एबे भी चली मतलब मैं सकाळ चली थी कार चलाना सीखी सारी सकाळ बुझेला बहुत दिन आगे शिखुची किस दिन आगे आरंभ होइछे कामटा ए कामटा एई समय रे मध्ये चलीची आगु को मध्ये किस दिन चलिबो क्लियर ओके देन कम टू एक्शन डेफिनेटली प्लान्ड फॉर द नियर फ्यूचर ओके नियर फ्यूचर मतलब फ्यूचर में मतलब कुछ दिन के बाद में जो काम होगा वो ऑलरेडी प्लान हो चुका है ऑलरेडी एक काम को हम लोग प्लान कर चुके हैं कुछ दिन बाद वो हो रहा है मतलब नियर फ्यूचर ज़्यादा देर नहीं है उसमें तो क्या होगा माई ब्रदर इज कमिंग हियर नेक्स्ट वीक में मेरा भैया यहाँ पे आ रहे हैं मतलब वो टिकट वगैरह कर चुके होंगे ठीक है वो कर चुके हैं और यहाँ पे आ रहे हैं ओके ये फ्यूचर का एक्शन हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं बट क्या है नियर फ्यूचर का जो एक्शन है वो ऑलरेडी प्लान हो चुका है ऑलरेडी उसका प्लानिंग बन चुका है ठीक है देन आर यू गोइंग टू पुरी टुमारो कल आप पुरी जा रहे होगा कल तुम्हें पुरी जाऊ चुकी ओके पुरी जीवा प्लान टा ऑलरेडी हमें बने सारी वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड टू गो टू पुरी नाउ वी विल रीड अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट ओके so formula is subject plus has or have plus B3 plus object example we have solved all the questions okay
मतलब मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। ही हैज कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट्स, वो उसका असाइनमेंट खत्म कर चुका है। ओके, सो वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, in the case when the work is recently finished but its effect is still present. ओके, काम अभी अभी खत्म हुआ है और कुछ देर पहले खत्म हुआ है, बट उसका इफेक्ट अभी तक है। ठीक है, सो ही हैज कंप्लीटेड ऑल हिज असाइनमेंट्स, मतलब वो उसका सारा असाइनमेंट खत्म कर चुका है, मतलब इफेक्ट क्या है उसका, अभी वो फ्री है। ओके, वी हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, हम लोग सारा क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, मतलब हम रेडी हैं अभी अगर दूसरा कोई पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, another example we can say I have completed my breakfast, मतलब मैं अभी भी मेरा ब्रेकफास्ट खत्म किया, मतलब अभी मुझे और भूख नहीं है, दैट इज द इफेक्ट। समझ में आ गया? नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या यूज होता है यहाँ पे। आई हैव बीन ईटिंग राइस, मतलब मैं चावल खाते आ रहा हूँ। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेलता आ रहा है। ओके, तो हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? द केस वेयर द वर्क, ओके, was started in the past but still it is continuing. बहुत देर पहले या बहुत दिन पहले काम शुरू हो चुका है, पर वो काम अभी भी चल रहा है और आगे तक कब खत्म होगा हमें पता नहीं है। अंदर एग्जांपल यू कैन से आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। ओके, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2010, मतलब मैं 2010 से स्कूल जाते आ रहा हूँ, मतलब 2010 में जा रहा था, 11 में जा रहा था, 12 में जा रहा था, अभी भी जा रहा हूँ, मतलब मेरा जाने का काम जो है वो चल रहा है, मतलब जाना आना जो रेगुलर हम लोग जा रहे हैं आ रहे हैं वो काम चल रहा है। सो इन दिस वे, ओके, हियर वी कंप्लीट द प्रेजेंट टेंस। इन द नेक्स्ट पार्ट, part 2, we will be going for past and future. Thank you.